جفات باقر ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ مریم نواز کہتی ہیں امریکہ میں بدزمانوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا اور اب پاکستان میں بھی باہر پھینکے گئے بدزبانوں کو اٹھا کر گلگت بلتستان میں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا نہیں لکھا، دھاندلی کی گئی تو عوام آپ کا گھیراؤ کرے گی۔ مہنگائی نے گھر اجاڑ دیے، آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں، اب یہ جا رہا ہے اور عوام کے الیکٹڈ آ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے جو دباؤ میں کھڑا نہ رہ سکے، جو آپ کے ووٹ کی عزت نہ کروا سکے، اس کا آپ کے ووٹ کے اوپر کوئی حق نہیں، اس کی جگہ صرف باتھ روم میں ہے۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ لوٹوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ ان کو واش رومز میں، غسل خانوں میں اور باتھ رومز میں رکھتے ہیں۔ ان کی جگہ نہ آپ کے گھروں میں ہے، نہ آپ کے پولنگ سٹیشنز میں ہے، نہ ان کی جگہ گلگت بلتستان میں ہے۔ ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ اور پورے پاکستان میں نفرت بڑھ رہی ہے یہ لوٹوں کی، لیکن اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے الیکشن سے۔ اور گلگت بلتستان میں جب سے میں نے پاؤں رکھا ہے، گلگت بلتستان میں نون کے متوالوں نے، شیروں نے، گلگت بلتستان کی عوام نے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی یہاں سے فتح یاب ہوگی۔ اور اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ جلسوں میں آتے ہو، نہ صرف آتے ہو بلکہ 4-4 5-5 گھنٹے کسی کرسی کے بغیر یہاں پر کھڑے رہتے ہو، تو دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں۔ بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان کے ساتھ وفاق میں بھی حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ گلگت بلتستان میں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا 15 نومبر کو تیر کے نشان پر مہر لگائیں اور پیپلز پارٹی کو خدمت کا موقع دیں۔ موجودہ حکومت کے خلاف ہر طبقہ احتجاج کر رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی حکومت نے ہمیشہ عوام دوست پالیسیز بنائیں۔ وہ ہمارا تحریک ہے، آپ کی تحریک ہے، حق حکمیت کی تحریک ہے، حق ملکیت کی تحریک ہے، حق روزگار کی تحریک ہے، یہ یہاں کے عوام کا مطالبات ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف یہاں کے پہاڑوں پہ یہ پیغام لے رہے ہیں، یہاں یہ وعدے کر رہے ہیں، مگر 2018 کے الیکشن میں، میرا پہلا الیکشن میں، میرا پہلا منشور میں یہ میں نے بات شامل کر دیا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں نیشنل اسمبلی اور سینیٹ میں بٹھانا پڑے گا، اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہمیں ان کے وسائل میں جو ان کا وفاق کی طرف سے ملتا ہے اس میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے نومبر 15 کا دن، نومبر 15 اس جدوجہد کا، آپ کی تحریک کا، جس میں آپ کا خون پسینہ شامل ہے، اس تحریک کے امتحان کا دن 15 نومبر پہ گلگت بلتستان کے عوام کا فیصلہ ہے۔ اور 15 نومبر پہ آپ نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئینی حقوق دلواتے ہیں، جو حقوق دلواتے ہیں۔ بلاول نے جلسے سے خطاب کیا تو مراد سعید نے بلاول کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہتے ہیں کہ پرچی سے سیاست کا آغاز کرنے والوں صوبے پرچی پر نہیں بنتے، درجن اور کلو کا معلوم نہیں اور عوام کی بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز پر تنقید کے نشتر چلا دیے، کہا جب ان کے وفاق میں حکومت تھی تب گلگت بلتستان کو صوبہ بنا لیتے، اب یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سی پیک کے حوالے سے ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ بھول جاتے ہیں اب تو میرے پاس ہی ذمہ داری ہے، اور میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے اگر کرنا ہوتا پہلے کر چکے ہوتے۔ یہ آپ کی جو لوکل سڑکیں ہیں، اس طرح علی امین صاحب نے کہا، یہ اسکردو سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور میں جو خستہ حالی دیکھ رہا ہوں یہ ان کی نااہلی ہے، اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے، لیکن جو بڑی سڑکیں ہیں یہ تو انشاءاللہ ہم نے تعمیر کرنی ہے، لیکن جو سب سے اہم ترین شاہراہ جو آپ کو چائنا سے کنیکٹ کرتی ہے، جو آپ کو باقی صوبوں سے کنیکٹ کرتی ہے، جو آپ کے یہاں سے نوجوان جاتے ہیں ان کے لیے
एक बाबू सर टॉप के हवाले से बात होती है प्रोजेक्ट की, वहां पे 8 महीने तक बर्फबारी की वजह से सड़क बंद होती है। तो क्या इन लोगों का क्या कसूर है? तो हमने इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू कर लिया है। साल के 12 महीने आप बाबू सर टॉप से गुजरोगे और आपको कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। दूसरा अहम केकेज का मंसूबा है, कराकुर्रम हाईवे जो आपका है, ये काफी अरसे से पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्यों काम नहीं हुआ? मेरे दोस्तों, हमने इसको मंजूर किया है और इसकी लिए फंड हमने रख दिया है और ये भी हम आपको बना के देंगे इंशाल्लाह। मेरा ताल्लुक स्वात से है, तो यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से शंदूर, फिर चतराल, फिर स्वात एक्सप्रेसवे और फिर ये सारा बिल्ड जो है मोटरवे का सीपेक का हिस्सा बनाना और इसको कनेक्ट करना, ये मंसूबा भी हमने मंजूर करके इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ा मसला है यहाँ पे कि डैम बन रहे हैं, लोगों को मुआविजा, जिन लोगों का भी मुआविजा रहता है वो तमाम का तमाम हमने उसकी मंजूरी दी है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि 2012 में अताबाद लेक वहां पे सड़क बनी थी, लोगों की जमीनें आई थी। आज 2020 है, सुनिए 2012। मुआविन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं मरियम नवाज इंतखाबी जलसों में हुकूमत के खिलाफ जहर उगल रही है, अपने इदारों, कौमी वक़ार और तशखीस के साथ खड़े हैं। पसमानदा इस्लाह रवां दौर में तरक्की कर रहे हैं। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि कोरोना से ज्यादा मुतासिर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। शादी हॉल्स भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स को बंद किया जाएगा। कोरोना के हवाले से ओवरऑल सूबे के अंदर कोरोना के बढ़ते हुए खतरात का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने वजारत सेहत को जो हदायत जारी की है कि सूबे की अवाम का जान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है और हर हाल में इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस पे और किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो आज फैसले हुए हैं हमारी कबीना कमेटी के अंदर, मैं उस हवाले से आपको आगाह करने आई हूँ। एक फैसला जो आप देख रहे हैं कि आए दिन कोरोना के मरीजों की तादाद के बढ़ने से हॉस्पिटल्स के अंदर लोड बढ़ रहा है। ये फैसला हुआ है कि जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन था उसको उन इलाकों के अंदर जहां केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, हुकूमत पंजाब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। इसे लेके अब तक किसी न किसी फॉर्मेट में 35 साल इक़्तिदार में रहा और 73 साल पाकिस्तान की तारीख में हमेशा पंजाब को महकूम रखा गया। मासूम पाकिस्तान के अवाम है जिनको आप बेवकूफ बनाते रहे और वो आपकी रंगबाजी, शोबाजी और अदाकारी की बुनियाद पे आपको वोट देते रहे। शहबाज शरीफ साहब की कमर का भी क्या हसीन इम्तजाज है कि वो उस वक्त तक लोहा और चट्टान रहती है जब वो सुप्रीम एपीलेट कोर्ट ने वुज़रा और अरकान असेंबली को गिलगित छोड़ने के लिए चीफ कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बिल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत मिल गई। गिलगित बिल्तिस्तान की चीफ कोर्ट ने इंतखाबी मुहिम में वुज़रा और अरकान असेंबली को गिलगित बिल्तिस्तान से निकलने का हुक्म दिया था, जिस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट एपीलेट कोर्ट में चैलेंज किया था। तर्जुमान सुप्रीम एपीलेट कोर्ट के मुताबिक 2 रुकनी बेंच ने बिलावल भुट्टो की अपील पर समाअत की और चीफ कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। सरगोदा से आपको अपडेट करिए, जहां पर मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर 4 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। 2 जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई जाती है और ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तिल शहरियों ने ट्रक को भी आग लगा दी है। सरगोदा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। सरगोदा में मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 4 शदीद जख्मी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तिल शहरियों ने ट्रक को आग लगा दी। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली में 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। कीमत में इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा के मुताबिक अगस्त में बिजली की पैदावारी लागत 3 रुपए 68 पैसे फी यूनिट रही। सार्फिन से इजाफी
वसूली नवंबर के बिल में की जाएगी। मज़कूरा फैसले से सार्फिन पर 5 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नॉनिंग रोंग ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीनी सफीर के दरमियान मुलाकात में इलाकाई सलामती पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और चीन के माबैन गैर मामूली लाजवाल ताल्लुकात हैं जिनमें मजीद बेहतरी लाई जाएगी। चीनी सफीर ने खित्ते में तनाज़ात की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बेहतर हो गई। सदर आरिफ अलवी और शेख रशीद ने टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी तबीयत में बेहतरी आई है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को फोन करके चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ के साथ साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरदार तनवीर इलियास ने परवेज इलाही से मुलाकात की और चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त की। वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया और चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। उन्होंने डॉक्टर्स और मुतल्लिका अमले को मुस्लिम लीग काफ के सदर का हर मुमकिन ख्याल रखने की भी हिदायत की है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ बढ़ गई, जिस पर नून लीग ने पार्टी सदर को फौरी डॉक्टर तक रसाई देने का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहिब जो शख्स अपनी सियासी मुखालफिन की सेहत पर सियासत करे वो काबिल तर्स है। इमरान साहिब जानबूझकर शहबाज शरीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान साहिब के इक्तदार का सफर शहबाज शरीफ की सेहत पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। ऐसे अपोजिशन को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ को जानते बूझते हुए बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया जिससे इनकी कमर में तकलीफ हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरियम औरंग नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद वो क्वारंटीना हो गए। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में मसरूफ थे। 4 रोज कबल उन्हें नजला और खांसी की शिकायत हुई, जिस पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया जो कि मुस्बत आ गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं और शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल हो गए, जहां वो 14 रोज के लिए क्वारंटीना कर लिए गए। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना सर उठाने लगा। मजीद 1650 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,44,839 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,977 हो गई। 3,18,881 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 18,981 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 9 मरीज इंतकाल करके पंजाब में 2,408, सिंध में 2,684, खैबर पख्तूनख्वा में 1,288, बलूचिस्तान में 154, गिलगित बल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 109 और इस्लामाबाद में 241 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1,650 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,06,922, सिंध में 1,50,170, खैबर पख्तूनख्वा में 40,657, बलूचिस्तान में 16,106, गिलगित बल्तिस्तान में 4,366, इस्लामाबाद में 21,681, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,758 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,64,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5 करोड़ 8 लाख हो गई। 3 करोड़ 59 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,44,000, ब्राजील में 1,62,397, भारत में 1,26,671, मेक्सिको में 95,000, रूस में 30,793, तुर्की में 10,887, ईरान में 38,291, अफगानिस्तान में 1,574 और सऊदी अरब में 5,540 अमवात हो चुकी हैं। शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब पेश किया जो अजीम जदोजहद के बाद हकीकत बन गया। अल्लामा इकबाल ने इनकलाबी रूपों की और इस्लामी अजमत को उजागर किया। अल्लामा इकबाल इंसानी खुदी के कायल थे।
बीसवीं सदी के बड़े शायर, मुसन्निफ, सियासतदान, सूफी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत का जिक्र हो तो बात अल्लामा इकबाल पर आकर रुक जाती है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। बहैसियत शायर इब्तदाई दौर में इकबाल किसी हद तक विलियम वर्ड्सवर्थ से मुतासर नजर आते थे, मगर जब उन्होंने कुरानी अहकामात और तालीमात मुबारका की जानब तवज्जो मरकूज की तो उनकी सोच में इनकलाब बर्पा हो गया। अल्लामा इकबाल की शायरी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत, जज्बाती लगाव, ज़ौक़ व शौक से मुज़य्यन नजर आती थी। बहैसियत सियासतदान उनका सबसे नमाया कारनामा नजरिया पाकिस्तान की तश्कील है। ये नजरिया उन्होंने 1930 को इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। एक फलसफे के तौर पर उन्होंने कौम के लिए नई जहतें मुतय्यन की। अल्लामा इकबाल की बसीरत और खिदमात की वजह से इन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में एक अहद का खात्मा हो गया। अल्लामा इकबाल का मिज़ार बादशाही। शायर मशरक और अजीम मुफक्कर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड के फराइज सर अंजाम दिए। इससे कबल ये जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के पास थी। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कमोडोर नेमतुल्लाह तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला पंजाब उस्मान बिस्तार ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। सूबाई वजीर इत्तलात फिरदौस आशिकवान भी वजीर आला के हमरा थे। इस मौके पर मुल्की सलामती की दुआएं भी की गईं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अल्लामा इकबाल के अफकार मुसलसल मुतासिर कन और रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट में कहना था कि अल्लामा इकबाल असर हाज़िर की साइंसी तकनीकी तरक्की और इंसानी अक्ल का एहतराम करते थे। अल्लामा इकबाल एक अजीम सूफी शायर थे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अल्वी कहते हैं कि शायर मशरक के फलसफा खुदी पर अमल करके हम तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान की ताबीर देंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हुकूमत पीडीएम की तहरीक से खौफ का शिकार हो गई है। बिलावल भुट्टो के बयान का भी वही हाल किया गया जो मेरे बयान का किया गया था। हुकूमत पीडीएम के इत्तेफाक को तोड़ना चाहती है। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं लाहौर में 13 दिसंबर को जलसा तारीखी होगा। हुकूमत पीडीएम के तहरीक से खौफ का शिकार हो चुकी है। बिलावल भुट्टो के बयान का भी वही हाल किया गया जो कि मेरे बयान का किया गया था। शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने वाले मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आ गया। 2014 में मुझे सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सलमान शहबाज के 60 करोड़ को ब्लैक से व्हाइट मनी में मुंतकिल करना था। मैं अपने अमल पर नादिम हूँ और माफी चाहता हूँ। मुश्ताक चीनी ने अपने बयान में कहा कि कासिम कयूम और अब्दुल कयूम ने मेरे अकाउंट से 6 करोड़ की टीटीज लगवाई। तरीक़ाकार ये था कि मैंने कासिम कयूम को नकद 6 करोड़ रुपए दिए। कासिम कयूम ने वो टीटीज लगवाई और ये जाहिर किया कि ये रकम मुझे बाहर से मौसूल हुई है। 2014 में मुझे सलमान शहबाज का काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वादा मुआफ गवाह ने बताया, मुझे कहा गया कि सलमान शहबाज के 60 करोड़ को ब्लैक से वाइट मनी में मुंतकिल करना है। मैंने बेबसी का इजहार किया तो कहा गया कि सिर्फ आपका अकाउंट इस्तेमाल होगा। मुश्ताक चीनी ने बताया कि पुराने कारोबारी ताल्लुकात और लालच में आकर मैंने इजाज़त दे दी। 2014 में सर्कुलर रोड ब्रांच से 21 करोड़ 40 लाख की टीटीज लगवाई गई। इसी साल फिर मुश्ताक एंड कंपनी के अकाउंट से 29 करोड़ 30 लाख की टीटीज लगाई गई। लीगी एमपी ख्वाजा इमरान नजीर एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं कि हुकूमत 13 दिसंबर के जलसे से खौफजदा हो चुकी है। एक मुंतखब नुमाइंदे के साथ तज़हीक अमीज रवैया रखा जा रहा है। ऐसी जगह रखा हुआ है जहां वॉशरूम तक नहीं। मरीम नवाज की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस में हंगामा आराई का मुकदमा। MNA अली परवेज, मलिक परवेज समेत 5 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर।
नेब ऑफिस में हंगामा राय केस में अहम पेशरफ्त। MNA अली परवेज, मलिक परवेज समेत 5 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई। अदालत ने 5 लीगी रहनुमाओं को 16 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। नेब की लाहौर हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नेब ने 8 माह बाद राना सनाउल्लाह का केस मुकर्रर कराने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। नेब ने आमदन से जायद असासों के केस में राना सनाउल्लाह को 10 नवंबर को तलब कर रखा है। राना सनाउल्लाह आमदन से जायद असासों के केस में 25 मार्च से अपूरी जमानत पर हैं। बैनुल मज़ाहिब रवादारी की मिसाल करतारपुर राहदारी खुलने का 1 साल मुकम्मल हो गया। हिंदू तवा के प्रचार नाम नहाद सेकुलर मुल्क भारत की रवायती हट दर्मी बरकरार नाकाम नाम नहाद सेकुलर रियासत भारत मुसलसल करतारपुर राहदारी को नाकाम बनाने के दर पे हैं। सिखों को करतारपुर में बाबा गुरु नानक की जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। दुनिया भर से सिख अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए गुरुद्वारा करतारपुर साहब आते हैं। सर्दी की आमद के साथ ही मछली की फरोख्त की दुकानें सज गईं। खाबों के शौकीन मछली पर हाथ साफ करने लगे। देखते हैं लाहौर से शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। सर्दी आते ही मछली की दुकानों पर रश लग गया। काला रहू, सफेद रहू, बाम, मली समेत मछली की मुख्तलिफ इकसाम शहरियों में बेहद मकबूल हैं। मछली सर्दियों की सबसे अच्छी सौगात तस्वर की जाती है और सर्दियों के आते ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर मुर्गी की निस्बत मछली लाख दर्जे बेहतर है। बस अभी तो शुरुआत है सर्दी की ना, शुरू कर दिए हमने। काला रोह में बहुत पसंद है तो बच्चे फरमाइश करते हैं। सर्दी आ गई है, काफी माशरन के पास बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं। मैं तो रोहू लेने आए हूँ जी। मौसम भी इस किस्म का आ गया है और फ्रेश भी मिल जाती है ऑलमोस्ट। बाकी चीज़ों में जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश आती है। इस वजह से बच्चे वगैरह सारे खाने में ज़रा पसंद भी करते हैं और मौसम भी इस किस्म का। जी मछली खरीदने के लिए आए हैं बच्चों की डिमांड पे। तो मुर्गी बहुत महंगी है, इसलिए मछली सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा ये मशवरा है जनाब, मतलब है कि मुर्गी की जगह तमाम लोग जो है वो मछली यूज करें। दुकानदार का कहना है कि मछली की कई इकसाम हैं, मगर लोग काला रोहू, सफेद रोहू, बाम और मली मछली शौक से खाते हैं। मछली की कीमत नस्ल तो 7100 नस्ल है, लेकिन जो यहाँ पे नस्ल चल रही है वो सिर्फ 15-20 नस्लें। रोहू, मली, सोल, सैमन, संगाड़ी। जो रोहू है, मली, ये 220, 250, 300 तक मछली है। फिंगर फिश मछली का वो 400 रुपये रेट है। इससे ज्यादा वो सोल है वो है 800 तक। बाकी ये मली है वो 400 रुपये तक है। बाकी रोहू जो है वो 220, 250, 280 रुपये किलो। जिंदा दिलान के शहर लाहौर में मछली 200 रुपये से 1200 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मुख्तलिफ इकसाम की मछलियों से दुकानें सज गईं और लोगों का रश भी बढ़ गया। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। अब खबरें आलमी मंजरनामे से। कोरोना वायरस से निपटना जो बाइडन की अवलीन तरजीह होगी। जो बाइडन टीम की नए सदर का प्लान सामने ले आई। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने आते ही अमरीका के लिए अपना मंसूबा भी बना लिया। जो बाइडन की टीम के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटना नौमुंतखब सदर की अवलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि जो बाइडन अमरीकियों को मास्क पहनने और ज्यादा टेस्टिंग पर जोर देंगे। मईशत, मौसमियाती तब्दीली और नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए भी काम करेंगे। WHO से दस्तबरदारी का फैसले को खत्म करेंगे। 7 मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियों का खात्मा भी करेंगे। सऊदी अरब के शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ने सदारती इंतखाबात में जीत हासिल करने पर जो बाइडन और कमाला हैरिस को मुबारकबाद दी। खबर एजेंसी के मुताबिक उन्होंने अमरीका की अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली की तमन्ना की और अमरीका सऊदी अरब तारीखी ताल्लुकात पर जोर दिया। दोनों लीडर्स ने मिस्टर बाइडन की मुआवन और अमरीका की तारीख में नायब सदर बनने वाली कमला हैरिस को भी मुबारकबाद दी। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि नए अमरीकी इंतजामिया के पास अपनी साबिका गलतियों की तलाफी का मौका है।
اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نقصان دہ پالیسیوں کی مخالفت کی. نئی انتظامیہ کو صدر ٹرمپ کی غلطیوں کے لیے تلافی کے لیے موقع کو استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ ایران دنیا کے ساتھ تعمیری رابطے کا حامی ہے. جو بائیڈن کا ایرانی ایٹمی معاہدے کو 6 طاقتوں کے ساتھ دوبارہ شامل کرنے کا وعدہ تھا، یہ وعدہ اس وقت کیا گیا جب 2015 میں جو بائیڈن نائب امریکی صدر تھے. ٹرمپ نے 2018 میں معاہدہ ختم کیا جس پر دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھ گئی. آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ ہم نے نگورنو کاراباخ کے مرکزی شہر شوشی پر قبضہ کر لیا ہے. قبضہ ختم ہونے پر ترک صدر طیب اردوان نے آذربائیجان کو مبارکباد دی. آذربائیجان کے صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ اس علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے گزشتہ 1 مہینے سے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین مسلح لڑائی جاری تھی. شوشی فوجی اور اسٹریٹجک حوالے سے اہم شہر ہے کیونکہ یہ علاقائی دارالحکومت سے صرف 10 کلومیٹر دور ہے اور بلندی پر واقع ہے. آذربائیجان کے صدر کے اعلان کے بعد آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شہریوں نے فتح کا جشن منایا. دوسری جانب آرمینیا کا کہنا ہے کہ شوشی پر قبضے کی لڑائی ابھی تک جاری ہے. دونوں ممالک کے درمیان 27 ستمبر سے شروع ہونے والی اس کشیدگی کے باعث سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے. گوئٹے مالا میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی. اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو گئے. لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد بھی شامل ہیں. ممکنہ طور پر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. تاہم مسلسل بارش کی وجہ سے امدادی کارکنوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان دنوں وسطی امریکی ممالک میں ریسکیو کو تباہ کن موسمی حالات کا سامنا ہے جن کی وجہ سے ان ممالک میں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. عراق کے دارالحکومت بغداد کے قریب چیک پوسٹ پر دہشت گرد تنظیم داعش کے حملے میں 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. دہشت گردوں نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الدھرونیا میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا. تاہم فورسز نے پوسٹ پر قبضے کی کوشش کی شہریوں کی مدد سے ناکام بنا دیا. حملے میں 5 قبائلی جنگجو اور 6 شہری مارے گئے جبکہ 8 افراد زخمی بھی ہوئے. حملہ آوروں نے 4 گاڑیاں استعمال کی اور دستی بموں اور آٹومیٹک ہتھیاروں کا استعمال کیا. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. اور اب ٹوڈیز سپورٹس.